প্রকৃতি সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই সান্ধ্যকালীন শুভেচ্ছা। আজকে আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি শুভ ধর্মসভা উপলক্ষে। একে আমরা যে ভাষা দিয়েছি ভারত ধর্মসভা। আমি আজকে ইন্ট্রোডাকশন করাবো। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন উড়িষ্যা থেকে আগত একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভান্তে মিত্যানন্দ। উনি আজকে এখানে অনুষ্ঠান করছেন, ধর্মদেশনা দান করবেন। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। অ্যাকচুয়ালি আমি বাংলা অত জানি নাই, আমি বলতে পারবো না বাংলা পুরো কমপ্লিটলি। বাংলা বলার আমার জন্য একটু কষ্ট হবে, তাইও আমি কিছু চেষ্টা করি, প্রয়াস করি কি বাংলা বলার জন্য। কিন্তু মাঝে মাঝে আমি একটু হিন্দি ইংলিশে বলতে চাই। আপনারা কি বুঝতে পারবেন না? সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন না সবাই? নাই নাই নাই। আমি উড়িষ্যা থেকে এসেছি। তবে আমরা এখানে কেন বসেছেন, হ্যাঁ, আমার বাংলা একটু আপনি सुधार सुधार करके सुनिएगा, इतने अच्छा नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं और बहुत सारे लोग इस समय क्या कर रहे हैं? पूरा वर्ल्ड में अगर देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव, बहुत सारे प्राणियां क्या कर रहे हैं? कुछ प्राणी हैं जो 4 चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। কিছু প্রাণীরা আছে কি চারটা নিয়ম, চারটা স্বভাবে ধ্যান দিয়ে, আহার, নিদ্রা, ভয় আর मैथुन। এই চারটা যে প্রকৃতি, চারটা যে ক্রিয়া, এই চারটা ক্রিয়াতে ধ্যান দিয়ে কিছু প্রাণী, কিছু মানুষ, কিছু জীব। কিন্তু ইয়ার ঊর্ধ্বে কিছু প্রাণী, কিছু আছে যারা আমরা মানুষ বলে। মানুষ শব্দের যে উৎপত্তি হয়েছে, এই মানুষ শব্দের অর্থ হলো মনস্য উৎসনাথায় ইতি মনুষ্য। এটাকে মনুষ্য বলে। মন আর উৎস, এই দুটা শব্দকে নিয়ে আমরা মনুষ্য শব্দ বলি। মন বলে কি? মনর মানে হলো চিন্তন করা। যে চিন্তন করে, চিন্তন করা প্রক্রিয়াকে মন বলা যায়। উৎস মানে ডেভেলপড। শুধু খাওয়ার জন্য, শুধু নিজকে প্রতিরক্ষা করার জন্য, শুধু রেস্ট নেওয়ার জন্য, কিংবা শুধু নিজের ইমোশনকে স্যাটিসফাই করার জন্য যে প্রাণী চিন্তন করে তারাকে পশু বলে, জীব বলে, একটা জীবধর্ম বলে। কিন্তু ইয়ার থেকে ঊর্ধ্বে যে প্রাণী চিন্তন করে তারাকে মানুষ বলে, মনুষ্য বলে। ইয়ে হলো মনুষ্য শব্দের ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা। তো মনুষ্য শব্দের অর্থ হলো কি? মনস্য উৎসনাথায়। মন আর উৎস, এই দুটো শব্দকে নিয়ে মনুষ্য বলে। তবে মনুষ্য আর যে প্রাণীরা আছে, এই প্রাণীরা মতো শুধু নিজে খাওয়ার জন্য কি, এই যে আমরা যে চারটা গুণ বললাম, এই চারটা গুণের জন্য, এই চারটা প্রক্রিয়ার জন্য শুধু চিন্তন করে না। মনুষ্য আরেকটা চিন্তন করে। কেন চিন্তন করে? কি মনুষ্য ইংরেজিতে বলা হয় কি হিউম্যান বিং ইজ দ্য অনলি লিভিং অর্গানিজম
হু ইজ অ্যাওয়ার অফ ইজ ওন এক্সিস্টেন্স। আমরা আছি এই যে অস্তিত্বের বোধ করার জন্য, শুধু মানুষ বোধ করে, অন্য কোনো অন্য কোনো প্রাণী আমরা আছি এই বোধটা থাকে না, শুধু মানুষ বোধ করে কি আমরা আছি। এক্সিস্টেন্স, অ্যাওয়ারনেস অফ এক্সিস্টেন্স only you can find in human being. You can't find in other living organisms. Other living organisms are solely depending on the four things, that the food, protection, sleep and sex. ये जो चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ों के ऊपर अन्य पूरे जो जितना प्राणी है सब निर्भर करते हैं। तो मनुष्य जो है, ये मानुष जो আছে कि মানুষ সব সময় কি এর ঊর্ধ্বে থেকে চিন্তন করে। কেন চিন্তন করে? কেন? মানুষকে বোধ হয় কি আমরা আছি। তবে আমরা যখন আছি তবে আমরা কিছু সমস্যাও আছি, এই সমস্যাকেও বোধ করে। যখন আমি আছি এইরকম যদি বোধ হয়, তবে আমাদের কিছু সমস্যা আছে, এই সমস্যাকেও বোধ হয়। এই জন্য ওটাকে বলে কি অ্যাওয়ারনেস অফ এক্সিস্টেন্স বলে। তবে এই যে সমস্যা আছে, এই সমস্যা থেকে কী রকম আমরা সমাধান পাবো, কীরকম আমি সমস্যা থেকে বাইরে যেতে হবে, কি এই যে চিন্তন করে, ওটাকে বলা যায় কি মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়াটা এই জন্য কিছু চিন্তন করে। তবে আজ নেই, শুধু অনেক যুগ থেকে, অনেক অনেক সময় থেকে, অনেক টাইম থেকে মানুষ চিন্তন করে আসছে কি আমরা কেন দুঃখ পাই, আমরা কেন দুঃখ পাই, কেন দুঃখকে মেহসুস করে, দুঃখকে অনুভব করে মানুষ। অন্য প্রাণীরা দুঃখকে অনুভব করে না, পীড়া পায় কিন্তু অনুভব করে না। এর পার্থক্য হলো কি যখন অন্য প্রাণীরা দুঃখ পায় বা দুঃখকে সম্মুখীন হয়, তখন অন্য প্রাণীরা এটা চিন্তন করে কি এটা প্রকৃতির এরকম দুঃখ কিছু, মোর হাতে কিছু আর নাই, আমি কিছু করতে পারবো না। কিন্তু মানুষ কি করে কি প্রত্যেক দুঃখকে বিশ্লেষণ করে, প্রত্যেক দুঃখকে অ্যানালাইজ করে কি এই দুঃখটা কেন আসছে, এই দুঃখের সমাধান কি, এই দুঃখের কারণটা কি, এই দুঃখের সমাধান কি করে করা যাবে। তো এই যে চিন্তন করে, এই জন্য কেন কেন মানুষের এই যে ব্রেনটা অন্য প্রাণীর থেকে খুব ডেভেলপড। এই জন্য মানুষকে বলে कि डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने प्राणी हैं पूरे विश्व में, तो उनमें से सिर्फ मनुष्य मतलब एक ही प्राणी है जिसके पास अस्तित्व के बोध है, और वो अपने आप को हरदम सोचते रहता है, अपने समस्या के बारे में हरदम चिंतन करते रहता है। तो इस प्रकार जो है ये हो गया मनुष्य के जो स्पेशल कैरेक्टर, যে অতিরিক্ত কি বলে, অতিরিক্ত স্বভাব বলে। তবে এই জন্য অনেক যে স্কলার, অনেক যে রিসার্চার অনেক চিন্তন করেছেন। তবে 2500 বর্ষ থেকে 2500 বর্ষ পূর্বে যে মানুষ এই মানুষের জন্য চিন্তন করলেন, তার নাম হলো তথাগত বুদ্ধা। আপনারা সবাই শুনেছেন এই নামটা। এই নামটা খুব পরিচিত আমার মধ্যে। কেন পরিচিত? আমি সবাই দুঃখী। যে কোনো মানুষ দুঃখী থাকে, তখন দুঃখর সমস্যা যদি কোনো মানুষ যদি समाधान করেছেন, তার জন্য শুধু নিশ্চয় ज़रूर उसको याद करेगा। हम बुद्ध को याद क्यों करते हैं? क्योंकि हम समस्या में है। जैसे हर एक पेशेंट डॉक्टर को याद करते हैं, जितने भी है ना रोगी आछे, रोगी पेशेंट रोगी तो रोगी आछे, ये रोगी डॉक्टर को याद करते हैं, मेडिसिन को याद करते हैं, रोग से छुटकारा पाने को याद करते हैं। इसी प्रकार जितने भी हम सब रोगी है, जितने भी हम सब समस्या में है, हम सब इस समस्या का किसने समाधान दिया है, इसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। और जब हम देखते हैं कि पूरे मनुष्य समाज के जो समस्या है, उसका समस्या का जो समाधान किसने खोजा है और पाया है और जो दिया है, तो वो है तथागत बुद्ध बोलते हैं। बुद्ध का मतलब होता है कि समस्या का हल निकालने वाला व्यक्ति। अगर हम प्लेन अर्थ में अगर কিছু যদি আমি সাধারণ যদি বুঝে কি বুদ্ধার মিনিং হলো কি যে বুঝেছে, কি বুঝেছে কি যে দুঃখের কারণ, দুঃখের নিদান আর দুঃখের নিদানের মার্গ, এই চারটা জিনিস যে বুঝেছে, আবার দুঃখের নিদানের মার্গ পেয়েছে, আবার দুঃখ নিদানের মার্গে গিয়ে দুঃখের থেকে মুক্তি হয়েছে, তো এইরকম মানুষকে আমরা বলি বুদ্ধা বলি।
বুদ্ধ বলে বোধ করার ব্যক্তি, যে বুঝেছে। তবে তথাগত বুদ্ধ এরকম একটু 2500 বর্ষ পূর্বে তথাগত বুদ্ধ, তখন থেকে কিন্তু আপনি দেখেন কি, আমি একটু चिंतन करी कि मनुष्य जो, मैं थोड़ा बीच बीच में हिंदी ज़्यादा ज़्यादा बोलूँगा, मुझे बंगाली अब आप लोग को समझ में आ रहा ना, है ना। तो मनुष्य जो है, ये मनुष्य जो प्राणी है, ये सबसे पहले क्या था, अगर हम इफ़ यू गो थ्रू द इवोल्यूशन थ्योरी, तो हम देखते हैं कि एक शिकारी था। और सिर्फ मनुष्य नहीं, सारे प्राणी शिकारी है, सब अपना अपना शिकार करते हैं। कोई प्लांट को शिकार करता है, कोई फल मूल का शिकार करता है, कोई प्राणी दूसरे प्राणी को शिकार करता है। शिकार करना मतलब यहाँ पर सिर्फ हंटिंग नहीं है, हंटिंग एंड गैदरिंग, हम इसको कह सकते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, ये कल्चर सभी में है। तो मनुष्य में भी है कि ये भी पहले शिकार करता था। शिकार मतलब कुछ फल मूल संग्रह करता था, कुछ डाल पत्तियाँ संग्रह करता था, कलेक्शन करता था, कुछ जड़ संग्रह करता था, कंदमूल, और ऐसे ही शिकार करता था। लेकिन शिकार, ये जो शिकार करने की जो टेंडेंसी है, ये मनुष्य का बहुत दिनों से है। अब एग्रीकल्चर बना, एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर की वजह से उनको ज़्यादा बाहर जाने का मौका नहीं मिला, या भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत जब नहीं पड़ा तो उन्होंने क्या किया, उस समय को उन्होंने चिंतन करने में लगा दिया, और तब से उन्होंने फिलोसफी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगा। लेकिन जब जिस प्राणी को वो शिकार करता था, कल जिस प्राणी को शिकार करता था, आज वो उस प्राणी को घर में रखने लगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य को एक चीज मिल गया, मतलब एक रास्ता मिल गया कि सोने की अंडा देने वाला मुर्गा नाम सुने होंगे। तो जो चालाक आदमी होता है वो मुर्गा को नहीं मारता, जो मूर्ख है, जो थोड़ा सा बुद्धू है, वो मुर्गा को मार देगा। क्या सोचेगा कि मुर्गा के अंदर में बहुत सारे अंडा होगा, है ना। आज थोड़ा अंडा दिया, एक अंडा दिया सोने का, अरे देखा कल फिर अंडा दे रहा, तो क्या सोचेगा कि मुर्गा के अंदर में बहुत सारे अंडा है। उसको जब पता नहीं है कि अंडा मतलब प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया, तो वो सोचेगा कि मुर्गा के अंदर में, मुर्गा के पेट के अंदर बहुत अंडा है, तो वो अंडा दे रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करता है, मूर्ख आदमी जो होता है, बुद्धू जो होता है, वो सोने की मुर्गी को मार देते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, चालाकी होता है, वो सोने का अंडा देने वाला मुर्गी को मारता नहीं है, उसको डेली मारता। डेली कैसे मारता है? डेली उसका अंडा लेता है ना। तो इसको बोलते हैं रेगुलर हंटिंग। तो इंसान दूसरे इंसान का रेगुलर हंटिंग करता है। आज भी एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। पहले मारता था, जानवर को मारता था, आज जानवर को नहीं मार रहा है, आज जानवर को घर में पालतू बना रहा है। और जिसको नहीं मारना चाहिए, जिसको अपने दोस्त बनाना चाहिए, जिसको अपने मित्र बनाना चाहिए, उसको मार रहा है। किसको मार रहा है? पेड़ पौधे को मार रहा है। और दूसरी बात, अपने एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। अब एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए आज के हथियार की जरूरत नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए जो हथियार है वो क्या है? क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है। ये सारे चीज जो है ये हथियार है, और ये हथियार को लेकर के वो मारता है दूसरे इंसान को। कैसे मारता है? उसका अंग्रेजी नाम होता है, जो मारता है, जो हंटिंग करता है, उसका अंग्रेजी नाम है करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन। ये सारे चीजों, ये जितनी शब्द है, ये शब्द शिकार है और कुछ नहीं है। शिकार करना, ये शब्द को आज अगर इस भाषा में बोलेंगे, इस युग में बोलेंगे कि उसको बोलेंगे हम करप्शन बोलेंगे। आज जो देख रहे हैं हम, एक बहुत सारे गोष्ठी है, बहुत सारे संख्या का मनुष्य है, और एक छोटे गोष्ठी है, छोटे गोष्ठी बहुत सारे गोष्ठी को शिकार कर रहे हैं, डेली शिकार कर रहे हैं। क्या शिकार कर रहे हैं? हमारा टैलेंट को शिकार कर रहे हैं। हमारा टैलेंट को, मतलब हमारे पास जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट को उन्होंने डेली हंटिंग कर रहे हैं, डेली हंटिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया मनुष्य की जो टेंडेंसी है, हंटिंग करने की टेंडेंसी, ये आज भी वैसे ही है जैसे हजार लाखों साल पहले था, बल्कि और ज्यादा है वो। क्योंकि मनुष्य जितना जितना बुद्धिमान होता है, शिकार करने की जो टेक्निक है वो इतना 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 डेवलप करते रहता है। ये हो गया आपका। तो इसमें जो मनुष्य जो शिकार है, जो पीड़ित है, वो अपना पीड़ा से मुक्त होने के लिए
मार्ग निकालते रहता है, फिर ढूंढते रहता है। और उनमें से बीच बीच में एक फिलोसफी आती है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, जैसे आज से लगभग जो है 100 साल पहले जो है बाबा साहेब अम्बेडकर एक फिलोसफी दिया। आपका जो है हरिदास हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, उन्होंने फिलोसफी दिया। तो वो किस वर्ग से लोग हैं? वो शिकार के वर्ग से लोग हैं, जिन्होंने खुद पीड़ित हुए। पीड़ित के वर्ग की जो आवाज़ है वो है हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर, वो है आपका जो है ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, आपका जो जोगेंद्र मंडल, ये बहुत सारे जितने भी है, ये सब पीड़ितों की आवाज़ है। यानी जो जो शिकार हुए हैं, शिकारी की आवाज़ नहीं है ये शिकार होने वाले लोगों में से एक आवाज़ है। उन्होंने शिकार को अनुभव किया, वो पीड़ा को देखा, बिकॉज ऑफ देयर अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, अवेयरनेस ऑफ सफरिंग। जब तक हमको अवेयरनेस ऑफ सफरिंग नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर में इससे कैसे मुक्त होंगे, इसके लिए रास्ता नहीं निकलेगा। जब तक आदमी को सबसे पहला व्यक्ति है कि हमको अवेयरनेस ऑफ सफरिंग होना चाहिए कि दुख की, व्हाट इज द सफरिंग, सफरिंग को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सफरिंग को नहीं जानेंगे, तब तक क्या होता है, हम दुख को एंजॉय करने लगते हैं। बहुत सारे होता है, दुख को एंजॉय करने लगते हैं। बहुत सारे जो जानवर है, बहुत सारे जानवर है, उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। बहुत सारे जानवर है, उसके पास घर बनाने की कोई चिंतन नहीं आया अब तक, बिकॉज दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। बहुत सारे शेर भी अपना घर के बारे में नहीं सोचता है ना, हाथी अपना घर के बारे में नहीं सोचता। बहुत सारे प्राणी हैं जो अपने घर बनाने की, या फिर अगले नेक्स्ट जनरेशन में हमको चांद में जाना है, हमको इसमें जाना है, वो जाना है, ऐसा कभी नहीं सोचते। क्योंकि उनके पास जो है, जो बुद्धि की जो क्षमता है, वो इतना लिमिटेड है कि सिर्फ वो अपने पेट के बारे में चिंतन करते हैं। और आज भी जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य भी, अगर वो पेट के बारे में चिंतन करे, ठीक है, जो पेट के बारे में चिंतन करे, सिर्फ बहुत बड़ा मकान बनाने के बारे में चिंतन करे, वो अच्छा आराम से रहने के बारे में चिंतन करे, तो वो पशु है, वो जानवर है। वो है इंसान दिखने वाला, लेकिन वो जानवर है। जो इंसान अपनी समस्या के बारे में चिंतन नहीं करता है, जो इंसान अपनी सफरिंग के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपनी समस्या के बारे में चिंतन नहीं करता, उस इंसान के पास एक चीज़ नहीं है, उसका नाम है सेंसिटिविटी। और जिसके पास सेंसिटिविटी नहीं है, उसको इंसान नहीं कहा जाता, उसको जानवर ही कहा जाता। वो भी जानवर ही है। वो भले ही अगर उसका चिंतन की जो पूरे कंसंट्रेशन जो है, वो अपने मेटेरियलिस्टिक के ऊपर फोकस करता है, नहीं मुझे बहुत बड़ा बंगला बनाना है, बहुत गाड़ी लेना है ना, तो वो इंसान सिर्फ एक प्राणी है और कुछ नहीं है, जो कि अपने दुख को एंजॉय करते रहता है। और वो कुछ इंसान उनमें से आते हैं जो बाबा साहब, जैसे मैंने बताया, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, आपका जो है गुरुचंद ठाकुर, हरिचंद ठाकुर, जोगेंद्र मंडल, और जितने भी है बहुत सारे लोगों ने, वो सिर्फ इंसान नहीं थे, वो इंसानों से ऊपर थे। वो मतलब चिंतन कर, उनका जो चिंतन करने की जो सीमा है, जो लिमिटेशन है, वो बहुत ज़्यादा था। तो उसी प्रकार बाबा साहब ने भी मतलब आखिरी में बाबा साहब ने हमको मार्ग दिया कि दुख को समझो, संघर्ष करो और एकजुट होकर संघर्ष करो। क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग का एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, है ना। हम लोग जब यूनिटी आता है तो स्ट्रेंथ हो जाते हैं, जब डिवाइड हो जाते हैं तो फॉल हो जाते हैं। जैसे मतलब वो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक ही लकड़ी को आप तोड़ सकते हैं, बहुत सारी लकड़ी जब इकट्ठा हो जाता है वो तोड़ नहीं सकते। इस कहानी को समझने में जितना आसानी से हम समझ जाते हैं, इतना लेकिन आसानी नहीं है उसको हम निभाने के लिए, क्योंकि हम इतने इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, आज भी इतना टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम कुछ भी आइडिया लेते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा दिन तक जाने के बाद फिर टुकड़ा हो जाता है, फिर आता है, फिर टुकड़ा हो जाता है। ये टुकड़ा होना ही जैसे हम लोग का एक कैरेक्टर हो गया, मतलब एक जैसे मतलब एक क्या बोलते हैं, गुण स्वभाव हो गया। हमारे स्वभाव हो गए कि मतलब किचु बोड़े आवार टुकड़ो हो, किचु बोड़े आवार भेंगे जाए, है ना।
তো এই জন্য আমরাকে বলি দলিত বলে। দলিত বলে কি? দলিত হলো দলায়াত ইতি, যে কি দলবদ্ধ থাকতে পারে না, দলর ইতি হয়ে গেছে, যে সমাজে দলর দলবদ্ধতার ইতি হয়ে গেছে তারাকে দলিত বলে। ঠিক আছে, তবে আজকে তো এসব সমস্যা। তবে আপনি জানেন কি সোশিওলজি যে পড়ে, সোশিওলজি স্টুডেন্ট যে আছে, টিসে আছে, ঠিক আছে, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স, টিস আছে, অনেক ইউনিভার্সিটি সোশিওলজি আছে। সোশিওলজি স্টুডেন্টরা সবাই শুধু প্রবলেমকে স্টাডি করে, কিন্তু প্রবলেম থেকে কীরকম আমি বাইরে যেতে হয় এটা স্টাডি করে নাকি, এটা কিছু ইনোভেটিভ আইডিয়া করে না, শুধু স্টাডি করে। তবে প্রবলেমকে স্টাডি করার একটা সোশিওলজি একটা সাবজেক্ট আছে, কিন্তু বাবা সাহেব আম্বেদকর কি বুদ্ধ, তথাগত বুদ্ধ এই প্রবলেমকে স্টাডি করলেন, তারপর এই প্রবলেম থেকে কীরকম বাইরে যেতে হবে এর মার্গ আমাকে দিয়েছেন। ওই এই মার্গের নাম হলো কি টিচিংস অফ দ্য বুদ্ধ, কি বুদ্ধের শিক্ষা, যাকে আমরা শর্টে বলে কি পালি ভাষায় বলে ধম্ম, বুঝলেন তো। আচ্ছা, আপনারা কেউ কেউ দেখেছেন কি এরকম পোশাক পরে, এই যে ভন্তে ভন্তে বলে আপনার কেউ কেউ জেনেছেন নাকি? অনেক 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 দিন থেকে পরিচিত আছেন, কিছু কিছু নয়, কিছু কিছু নিউ আছেন নাকি? কেউ জানি না ভন্তে বলে কি। ভন্তে বলে এই যে বুদ্ধের শিক্ষাকে মেসেঞ্জারের মতো বুদ্ধের শিক্ষাকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য যে কাজ করে তাকে এক মিশনারি, এক ভলেন্টিয়ার, সোশিয়াল ভলেন্টিয়ার, ওরাকে বলে ভন্তে, বুঝলেন? ভন্তে বলে এরকম কিছু যে যে ডেডিকেট, আপনি যে জীবনটাকে মানে এই যে সোশিয়াল, এই যে বাবা তথাগত বুদ্ধের মেসেজকে মানে समाज के पहुंचार जन जो काज करे, बुझलें तो भंते बोले। क्योंकि उड़ीसा में जब मैं पहली बार गया तो उस समय भंते शब्द को लोगों को मालूम नहीं था, ठीक है। तो मुझे लोग बंटी बोल के पुकारते थे, क्योंकि उनको लगता था भंते गलत है, ये शब्द बंटी होना चाहिए, क्योंकि बंटी एक नाम होता ना। तो उन्होंने मुझे बहुत बार मैं बोलने के बाद बंटी बंटी भी बोलते थे। तो इस प्रकार उन्होंने तो रास्ते में बहुत जगह पर मतलब वो परिचित भंते बोलने से क्या, पंडित जानते हैं, महाराज जानते हैं, स्वामी जी जानते हैं, है ना, महात्मा जानते हैं, लेकिन ये भंते शब्द जो है ये नहीं जानते। लेकिन इसका बहुत बहुत दिनों से इसका प्रचलन है। तो आज हमने ये प्रॉब्लम तो हो गया, अब हमने उड़ीसा में जो है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने क्या स्टेप लिया उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सब लोग को चर्चा करना चाहता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उड़ीसा में, या फिर मैं जापान से आने के बाद जब उड़ीसा में कैसे काम किया उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। फर्स्ट समस्या क्या है कि दुख बोलने से बहुत लोग समझ नहीं पाते। दुख या सफरिंग बोलने से बहुत लोग सोचते हैं कि शरीर का पीड़ा होना, बुखार होना, पैसा नहीं होना, अपने घर में बच्चा नहीं होना, अपने गरीबी होना, नौकरी नहीं मिलना, ये सारी चीज़ को दुख बोलते हैं। लेकिन दुख वो नहीं है, वो एक पीड़ा है, एक कष्ट है, लेकिन दुख वो नहीं है। दुख हर समय माइंड से रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड होता है, उसको दुख बोलते हैं। बुद्ध ने जो दुख के बारे में बताया है वो ये सब दुख के बारे में नहीं बताया। इसीलिए बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि बुद्धिस्ट या फिर बुद्ध के टीचिंग्स में जाने के बाद हमको नौकरी मिल जाएगा, है ना। जैसे जैसे लोगों को आशा होती है कि हम अगर 108 नारियल फोड़ेंगे तो हमको नौकरी मिल जाता। कुछ कुछ लोगों को एक कितना महीना जाने के बाद उनको नौकरी मिलती है, बच्चा मिल जाती है, ये मिल जाता है। तो इस प्रकार जो विश्वास है ये बुद्धिज्म में नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म में इसको दुख नहीं माना गया, ठीक है। बुद्धिज्म में जिसको दुख माना गया उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बाकी चीज़ों में, बाकी जो टीचिंग्स में जिसको दुख मानते हैं वो साधारणतः क्या है, मेटेरियलिस्टिक सफरिंग है। हाँ, मेटेरियलिस्टिक सफरिंग है, जिस प्रकार की मेटेरियलिस्टिक सफरिंग है। लेकिन बुद्ध ने अल्टीमेट सफरिंग की बात कहते हैं। अल्टीमेट सफरिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो सफरिंग का एंड नहीं है, जो सफरिंग सही में सफरिंग है, क्योंकि इसको हम कैसे मानेंगे, कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बच्चा नहीं है, आप बहुत दुखी है, दुखी होना स्वाभाविक है, बच्चा नहीं है, क्यों दुखी है।
दूसरे घर में बच्चा है, देखते हैं कितने अच्छा खिलते हैं, कितना हंसते हैं, ये देख करके मन में दुख आता है। लेकिन किसी किसी घर में बच्चा है इसलिए वो दुखी है, तो आपका प्रॉब्लम नॉल एंड वॉइड हो जाता फिर, है ना। आप जो लॉजिक देते हैं कि मेरे घर में बच्चा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो ये नॉल एंड वॉइड हो जाता फिर। आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत दुखी है ना। तो आप देखना, एक आदमी पार्क में आके बैठा है, करोड़ों रुपया की बिल्डिंग को छोड़ करके, करोड़ों रुपये का बिल्डिंग बनाया, उसको छोड़ करके आया और पार्क में आराम से बैठा है। आप अगर उसको पूछोगे कि आप घर में क्यों नहीं, अरे बेकार है घर, घर में तो रहने लायक नहीं है घर, है ना। और यहाँ पर छात भी नहीं है, विदाउट रूफ यहाँ आनंद मिलता है। तो जो आदमी वही पार्क में गया होगा कि मेरे अंदर मेरे एक अच्छा घर होना चाहिए, तो वो आदमी अपना दुख का समाधान मिल गया होगा, नहीं वो फिर आ जाएगा। तो इसीलिए जिस आदमी ने बोलेगा नौकरी है नहीं है मेरे पास, इसीलिए बहुत दुखी है, और किसी ने नौकरी से लौटते हुए बेकार की नौकरी है, कब छोड़ दूंगा, ये जब सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा, अरे मैं अच्छा हुआ मेरे पास नौकरी नहीं है फिर। तो बुद्ध ने इसीलिए ये सब सफरिंग के बारे में नहीं बोलते हैं। बुद्ध बोलते हैं कि ये सब सफरिंग क्यों होता है, इसके बारे में बोलते हैं, और बुद्ध ने उसको दुख कहा है। बुद्ध की दुख के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब सफरिंग नहीं है, ये सब इफेक्ट ऑफ द दुख, ये दुख का इफेक्ट है। आज हम बोलते हैं कि मतलब जो है कुछ कुछ प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम आज की प्रॉब्लम की बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आज शुरू नहीं हुआ, प्रॉब्लम बहुत, ये इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं और हम सोचते हैं कि ये कारण है। कारण और इफेक्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मनुष्य ने जब भी अपने वो दुखों की लिस्ट बनाया होगा कि मैं किस किस लिए दुखी हूँ, तो उन्होंने जरूर पाया होगा कि उसको बहुत चिंतन करने के बाद पता चलता है कि मैं इसके वजह से इस प्रकार के दुख मिला, मुझे इस कार्य के वजह से इस प्रकार के दुख मिला। तब मनुष्य ने पाप की एक लिस्ट बनाई, ये सारे चीज पाप है जिसके इफेक्ट है कि मैं दुखी हूँ। अब बुद्ध ने क्या बोला कि उनका जो गाथा में बोला, सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपन, तीन चीजें बताए। पाप को नहीं करना, पाप का मतलब क्या है कि जिससे हम दुखी होते हैं उसका कारण पाप है, ठीक है। आज हम बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिला, तो ये दुख नहीं है, ये इफेक्ट है, एक रिजल्ट है। किसके वजह से, हम अच्छा पढ़ाई नहीं किया, या फिर हम अच्छा कंपटीशन में भाग नहीं लिया, हम अच्छा मेहनत नहीं किया, या फिर हम अच्छा कंसंट्रेट नहीं किया, या फिर हमने कुछ भी हो, तो जो भी हम पीछे 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 उसको खोजते जाएंगे, एक कारण मिलेगा, उस कारण है दुख। एक्चुअली उस कारण दुख है, उसका इफेक्ट आज हम भोग रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार बुद्ध ने कहा कि जो इंसान को समझ में आ जाएगा कि मुझे दुखी नहीं होना है, तो वो अपने क्या करेगा, अपने सारे कारणों को तोड़ेगा, वो प्रभाव से विचलित नहीं होगा, वो प्रभाव से इतना विचलित नहीं होगा, वो कारण को तोड़ते जाएगा। कारण को जब तोड़ते जाएगा तो देखेगा एक समय आएगा कि उसको दुख नहीं होगा, दुख मुक्ति हो जाएगा। दुख मुक्ति का एक ही रास्ता है, बुद्ध ने बताया कि उसका कारण, उसका जड़ है जिससे दुख आता है, उस जड़ को तोड़ दो, है ना, उसके बाद दुख खत्म हो जाएगा। तो हमने उड़ीसा में जाकर के पहले देखा कि ट्राई किया कि एडल्ट लोगों से, आप जैसे लोगों से बात करने के लिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं मालूम है, आप लोग सिर्फ सुनते हैं, एंटरटेन करते हैं। बहुत अच्छा गान चला, बहुत अच्छा गाना गाए, बंते जी के उड़ीसा से आए थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, कभी बांग्ला, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, ऐसा मिला जुला के बहुत अच्छा बोल रहे थे। आप घर में जाने के बाद फिर आप भूल जाएंगे, ये आपका स्वभाव है, ये कोई विचित्र बात नहीं है, आप उसको माने या ना माने, ये स्वभाव है। लेकिन हमने जिसको छोड़ देते हैं, जो सही में सीखने के समय है, वो समय है बचपन। क्योंकि चाइल्डहुड में एक्चुअली हम सीखते हैं 5 से 15 साल तक। ये जो समय है, ये समय एक ह्यूमन लाइफ का टोटल जो फ्यूचर ये बनाता है। 5 से 15, सिर्फ 10 साल,
सिर्फ 10 साल पूरे ह्यूमन लाइफ का स्ट्रक्चर जो है ना वो फाउंडेशन बनता है, स्ट्रक्चर बन जाए, एनाटॉमी। जैसे एमबीबीएस पढ़ने जो जाता है ना एमबीबीएस, तो पहला क्या उसका फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फर्स्ट एनाटॉमी पढ़ते हैं, है ना, फिजियोथेरेपी, बायोकेमिस्ट्री ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट, लेकिन पहला सब्जेक्ट एनाटॉमी पढ़ते हैं। मतलब किसी भी शरीर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और पूरा शरीर का स्ट्रक्चर जो होता है ये 10 साल में बनता है, क्योंकि ये 10 साल में आदमी का संस्कार बनता है, माइंडसेट बनता है,